Welcome to the core of our constitution, or as they are famously called as the Magna Carta of India, the fundamental rights provided in Part 3 of the constitution and under the Article 12 to 35 of the constitution. Okay, so fundamental rights are basic human freedoms which are guaranteed to every citizen by the constitution of our country. Okay, these rights are called as fundamental rights because they are essential not only for enabling an individual's development, dignity, and well being, but they also act as a protection or checks against arbitrary actions of the state. They form the backbone of our constitution, and perhaps it's only natural that they are one of the most frequently asked questions in our UPSC preliminary examination, right? Okay, so a couple of things about FRs or fundamental rights. First, they are inspired by the Bill of Rights that is prevalent in the Constitution of USA. Okay, they were originally 7 in numbers, but after 44th amendment, constitutional amendment during the Janata Party government, their number has been reduced to 6 because the right to property, which was a fundamental right earlier, has now been shifted out of Part 3 and it's now merely a constitutional right or a legal right for that matter. Okay, the objective of these fundamental rights, or rather the objective behind these fundamental rights, is establishment of rule of law instead of rule of men. The Part 3 intended to change the concept of lex into lex rex. बहुत ही लैटिन फ्रेज है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका मतलब होता है कि मेन आर सुप्रीम के कंसेप्ट को पार्ट 3 लॉ इज सुप्रीम के कंसेप्ट से रिप्लेस करता है. ठीक है. देन व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसके की फीचर्स जो हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. फर्स्ट, अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन. देखिए, दीज आर इन नेचर ऑफ रेमेडीज विच आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट एक्शन ऑफ द स्टेट पर से, एंड दे आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट एक्शन. अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को अब्रेज कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो रेमेडी जो होगी वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाकर ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस के थ्रू रेमेडी लेना होगा. यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 एंड क्लेम दैट माई फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड. ठीक है. देन देयर कोनोटेशंस आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर ड्राफ्टेड इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट. जैसे आर्टिकल 14 है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है. सिमिलरली कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो पॉजिटिवली ड्राफ्टेड हैं. यू नो, ऑल पर्सन्स, लाइक अंडर आर्टिकल 15 वी हैव 15 में है, ऑल पर्सन्स आर गिवन इक्वल equality without any discrimination with respect to religion, race, caste, sex or place of birth. और similarly article 16 है, it talks about equality of opportunity in matters of public employment to everybody. ठीक है ना. तो ये अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं उनमें से कुछ नेगेटिवली ड्राफ्टेड हैं, कुछ पॉजिटिवली ड्राफ्टेड हैं. देन justiciable. Unlike the directive principles of state policy, the fundamental rights are justiciable. That in case of their violation, every citizen of India has the right to go to the higher judiciary or the High Court or Supreme Court of India and seek a remedy. Then they are both self-executory as well as legislation dependent. So, if you want to elaborate it, some of the fundamental rights such as Article 14, Article 21, Article 19, they are essentially self-executory. They don't need any legislative sanction or legislative backing for their enforcement. जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17, इट अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी. इट डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस एन ऑफेंस. बट इसको एनफोर्स या फिर इफेक्टिव करने के लिए यू नीड अ लेजिस्लेशन. सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 in case of article 17 is that legislation. ठीक है ना. then fundamental rights are primarily available to citizens. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे 14 है, 20 है, 21 है, दे आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, बट प्राइमरली जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया.
ओके, लेट्स हैव अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. सो जो प्राइमरली हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है फंडामेंटल राइट्स, उनको हम लोग 6 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है ना. ये 12 और 13 तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, बट कमिंग फ्रॉम 14 टू 32 देर आर 6 ब्रॉड ग्रुप्स जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड करते हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम विच इज़ 19 फ्रॉम 22, and right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. elaborately हम इसको आगे करेंगे. ओके, अब इसको जो कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको अगर आपको याद रखना है, क्योंकि ये कैटेगरीज ही कई बार क्वेश्चन में आ जाती हैं. ठीक है ना. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट. देन यू हैव अ mnemonic here which says every free person chooses cultural remedies. Every free person chooses cultural remedies. अब इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक एक ग्रुप ऑफ राइट को इंडिकेट करता है. जैसे एवरी का ई हो गया, इट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी अंडर 14 टू 18. फ्री का एफ हो गया, इट रिप्रेजेंट फ्रीडम. फ्रीडम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, फ्री को. देन पर्सन का जो पी हो गया, इट कैन बी कनेक्टेड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. देन देर इज चूजेज. चूजेज से हम कंसाइंस या रिलीजन को कनेक्ट कर सकते हैं. देन देर इज कल्चरल. कल्चरल से ऑब्वियसली हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. देन फाइनली रेमेडीज, जो हमारा आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. In fact, there is another mnemonic, which I personally use. It's called referer, REFERER. So R stands for right, and then we have right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and constitutional remedies. अब इसमें अगर आप इस slide को देखेंगे तो you will get to see that the words which I have used in that mnemonic, I have put them in capitalized form in the slide. Okay, तो आप उसको याद कर सकते हैं. और वैसे ये जो निमोनिक्स हैं, ये मेरी जो PDF होगी, इस PDF में भी दिए जाएंगे. सो इफ़ यू गेट टू सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दीज निमोनिक्स एंड यूज़ देम. एंड माइंड यू, दीज निमोनिक्स आर वेरी हैंडी. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं जब हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज यू नीड टू सेव टाइम एंड रीड देम क्विकली. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 and 13, they are the foundational articles of part 3. एंड आर्टिकल 12 जो है, इट डिफाइंस स्टेट फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्ट 3. ठीक है. और जो स्टेट की डेफिनेशन है फॉर पर्पसेस ऑफ पार्ट 3, इट इंक्लूड्स 4 थिंग्स प्राइमरली. वन इज एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, executive and legislature of states. Then we have local bodies such as panchayats, municipalities, district boards, etc. And then finally we have other authorities. Other authorities से मतलब है those instrumentalities or agencies which have a pervasive state control or which act as instrumentality of the state. ठीक है. आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, ये सब दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अथॉरिटीज. देन वी हैव आर्टिकल 13. ये बहुत रेलिवेंट है. इट डील्स विद लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स एंड इट डिक्लेयर्स देम वॉइड. अब इसमें 2 चीज़ें हमारे लिए काम की हैं. एक तो ये कि इट डील्स विद बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड सेकेंडली it declares any pre-constitutional or post-constitutional right as void if it is in contravention of part 3. ठीक है. तो अब the main objective of this article 13, इसका objective क्या है main? It is to secure the paramountcy of constitution or rather the paramountcy of part 3 of constitution over any pre or post-constitutional rights. ठीक है. What it essentially says is that any pre-constitutional law, if it is inconsistent with fundamental rights, then such a pre-constitutional law, to the extent of its inconsistency with the fundamental rights, shall be void. ठीक है ना. दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि the parliament, it forbids the parliament from enacting any law which takes away or abridges the fundamental rights. दोनों चीज़ों को मैं डिटेल में बोलूँ तो, कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता. ठीक है.
दूसरा, कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ ही ना बनाए जो पार्ट 3 को अब्रिज करता है, एंड इफ इन केस Parliament does indeed make such a kind of law, it can always be challenged in the courts and it can be declared void. अब ये जो voidability of legislations है on the premise of fundamental right, it gives rise to certain doctrines. जैसे doctrine of judicial review है. Doctrine of judicial review deals with the power of higher judiciary or Supreme Court and High Court to ascertain the constitutionality of various legislations with respect to provisions of the constitution. तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, they can check the constitutionality of legislations, and if it is found that these provisions of these laws are against any of the provisions of part 3 or constitution for that matter, the courts can declare them null and void. ठीक है. Then another thing or another doctrine which emerges from article 13 is doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse जो है, it has been laid down by the Supreme Court as a sort of a remedy from the curt language of Article 13. Article 13 तो inconsistent laws को सीधा ही void declare कर रहा है. But what the Supreme Court has laid down is कि ये जो laws हैं, even if they, a pre-constitutional law, which initially when it was formed, since it was formed before the coming in force of the constitution, so initially when it was formed it was perfectly valid. Now because of coming in force of part 3 of the constitution, it has become invalid. So what the Supreme Court has done is it has said that it does not completely become nullity or a completely become a void ab initio or a non-est provision. It remains dormant, it remains in a स्लीपिंग स्टेट, एंड वो जो लोग हैं, मतलब दो स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन हु डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स, उनके रिस्पेक्ट में ये लॉ पूरी तरह एप्लीकेबल होगा. सिटीजन्स पे अप्लाई नहीं करेगा, नॉन सिटीजन्स पे पूरी तरह अप्लाई करेगा. इसी तरह श्री अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और डॉक्ट्रिन दी है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. अब सेवरेबिलिटी में उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है कि अगर कोई लेजिस्लेशन है विच अब्रिजेस और वायलेट्स द मैंडेट ऑफ पार्ट 3 बट इट कैन बी सेग्रीगेटेड, मतलब जो प्रोविजंस हैं उस लॉ के विच वायलेट पार्ट 3, इफ दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेशन, then only that impugned provision will become void. The rest of the legislation will remain intact and will remain in force. ठीक है ना. तो यहाँ पे दो चीजें हमें याद रखनी है कि even though article 13 declares any law which is in contravention of part 3 to be void, but ऐसे लोग जिसपे वो पार्ट 3 एप्लीकेबल नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट में ये वो लॉ फिर भी वैलिड रहेगा. मोरोवर, अगर उस लेजिस्लेशन को बाइफरकेट किया जा सकता है गुड और बैड पार्ट्स में, या फिर इम्प्यून्ड प्रोविजन को अलग किया जा सकता है, तो इम्प्यून्ड प्रोविजन जो होगा वो प्रोविजन इनऑपरेटिव होगा और बाकी सारा का सारा लेजिस्लेशन वैलिड रहेगा, इट विल रिमेन इन फोर्स. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18. अब आर्टिकल 14 जो है, इट डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ, and it says that the state shall not deny to any person two things. One is equality before law and second is equal protection of laws. ठीक है. तो अब यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. देखिए, व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ essentially means is that all persons irrespective of their caste, creed, rank, position, they would be equal in the eyes of law. The laws of the land will be equally administered to all these people irrespective of their standing in the society. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो एक जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, व्हाट इट सेज इज दैट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट टू द पीपल हु आर सिचुएटेड इन सिमिलर सिचुएशंस. दो लोग अगर सिमिलर सिचुएशंस में हैं तो उन दोनों के लिए लॉ सिमिलर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा, बट दो लोग डिसिमिलरली सिचुएटेड हैं तो उनको लॉ डिसिमिलर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा. और एज द फेमस फ्रेज गोज, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट इज 15th.
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स. देखिए आर्टिकल 15 जो है इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 5 ग्राउंड्स: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अमंग्स द सिटीजन. दैट इज द जनरल मैंडेट ऑफ आर्टिकल 15. ठीक है. देन 15(2) क्या कहता है? ये कहता है जो भी हमारी पब्लिक अमेनिटीज हैं, जैसे हमारा क्या कहते हैं पब्लिक शॉप्स हो गई, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, इन सब में अगेन ऑन दीज 5 ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. देन अनदर थिंग विच 15(2) सेज इज जो पब्लिक अमेनिटीज हैं, रादर द थिंग्स ऑफ पब्लिक एक्सेस हैं, जैसे हमारे कुएं हो गए, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, बाथ्स हो गए, पब्लिक रोड्स हो गई, विच आर मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, इन सब में भी इन ग्राउंड्स पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ये दोनों दो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं 15(1) और 15(2) अपना ले डाउन करती हैं. ठीक है. अब उसके बाद 15(3) से लेकर 15(6) तक के जो आर्टिकल्स हैं दे वर्क इन द नेचर ऑफ एक्सेप्शंस टू दिस रूल. ओके, आई विल नॉट गो इन द इन डेप्थ डिटेल, आई जस्ट क्विकली मेंशन देम कि जैसे 15(3) है, इट डील्स विद प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विमेन एंड चिल्ड्रन. 15(4) हो जाता है, इट डील्स विद क्या कहते हैं प्रोविजन्स फॉर वीकर सेक्शंस, SC and STs, and then there is provision with respect to इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको 10% रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है विच वॉज गिवन अंडर 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उससे डील करता है. ठीक है. देन देर इज आर्टिकल 16 विच डील्स विद इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब आर्टिकल 16 जो है वो भी क्या बोलता है, मतलब इट गिव्स it takes these 5 grounds which are given in article 15 और उसके अलावा 2 grounds और देता है, एक तो residence देता है और एक domicile देता है. ठीक है. तो what it says is that the state shall provide equality of opportunity in the matter of employment to public services to all the citizens and will not discriminate amongst them on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, डिसेंट और डोमिसाइल. इन 7 ग्राउंड पे उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, या तो इंडिविजुअली या कंबाइंडली कोई डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अब इसमें एक चीज याद रखनी है आर्टिकल 15 और 16 दोनों में ही, कि जो इनमें ग्राउंड्स मेंशन दिए हैं उनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बट उसके अलावा आपने अगर कोई ग्राउंड डाल दिया है तो उस ग्राउंड के ऊपर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. ठीक है. देन जस्ट लाइक 16 में भी यही है कि जो 16 इनिशियली जो इनिशियल लैंग्वेज है, इट फॉरबिड्स द स्टेट टू मेक फॉरबिड्स द स्टेट टू मेक डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, एंड देन द लेटर ऑन प्रोविजंस जो हैं दे मेक एक्सेप्शंस इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शंस, SCs एंड STs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, क्या कहते हैं, so as to emancipate or so as to bring them on the same pedestal as the other sections of the society. ठीक है. Then there is article 17. Article 17 deals with abolition of untouchability. It declares untouchability as abolished and its practice an offense. और protection of civil rights, जैसे मैंने आपको पहले बताया, it is the legislation that has been enacted by the state to enforce article 17. Now Article 18, it prohibits Indian citizens as well as non-citizens who are working under the services of the state of India from accepting any title. They are not supposed to accept any title from any foreign state, or they are not supposed to accept any presents from foreign state or any office from foreign state. Similarly, it lays down another prohibition on the state of India, or rather the Indian government. It says that the Indian state cannot grant any title except military or academic. इन 2 टाइटल्स को छोड़ के कोई और टाइटल इंडियन स्टेट्स अवॉर्ड नहीं कर सकता है. ठीक है. Okay, next we look at to the group of right to freedom, article 19 to 22. अब article 19 जो है ये it provides 6 freedoms: freedom of speech and expression, freedom of peaceful assembly, freedom of movement, freedom of residence, freedom of business and profession, and freedom to form associations. Okay.
अब ये जो 6 फ्रीडम्स हैं ये आर्टिकल 19 देता है, उसके साथ ही आर्टिकल 19(2) जो है 2 से लेकर 6, ये जो सब क्लॉजेज हैं ये इन फ्रीडम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ले डाउन करते हैं। ठीक है, आई जस्ट क्विकली गो टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये टेबल है जो मैंने यहाँ पे बना दी है, दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम्स दैट आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19। अब आपको ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू एवरी फ्रीडम, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत बार होता है कि भाई आपसे सीधा कोई पर्टिकुलर फ्रीडम पूछी जाएगी और उसके ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शन है ये पूछ लिया जाएगा। इट इज़ वेरी हाईली लाइकली आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है ना। अब इसमें जो 1A है उसमें फिर भी आपको 5 रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट बाकी सब में नॉर्मली 2 या 1 रिस्ट्रिक्शन ही है, सो इट्स नॉट दैट हार्ड टू रिमेंबर ऑल्सो। ओके, सो that is article 19. Next we go to article 20 which deals with protection in respect of conviction from offenses. अब इसमें जो है ये प्रोविजन जो है इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन एंड इट लेज डाउन 3 रूल्स, 3 रूल ले डाउन करता है। पहला तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 जो है इट स्पेल्स आउट द प्रिवेंशन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पीनल लॉज। जो रिट्रोस्पेक्टिव पीनल लॉज है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एसेंशियली क्या बोलता है कि अ न्यू लॉ कैन नॉट पनिश एन ओल्ड एक्ट, और एज पर इट अदर वर्ड्स एज पर इट देयर कैन बी नो कन्विक्शन एक्सेप्ट फॉर वायलेशन of law which or rather for commission of an offense which was an offense at the time of its commission, or in other words there can be no conviction except for violating law which was in force at the time that offense was committed। देखिए आपने जब भी कोई ऑफेंस कमिट करी है, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका लॉ उसे एक ऑफेंस बोलता है तभी उसके अंडर कन्विक्शन हो सकता है। मोरोवर अगर वो लॉ उसके लिए कोई पनिशमेंट देता है तो उतनी ही पनिशमेंट दी जा सकती है, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। ये 2 चीज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 बोलता है। ठीक है, देन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। फेमसली इसको डबल जेपर्डी बोला जाता है। इसका मतलब होता है नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, देन 20 सब क्लॉज 3 जो है इट डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग लॉज वो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 23 में दिए गए हैं, एंड इट प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पर्सन हैज बीन अक्यूज्ड। देखिए यहाँ पे अक्यूज किया गया है, उसको पनिश नहीं किया गया, सिर्फ अक्यूज किया गया है। एंड इट सेड दैट वेयर ही हैज बीन अक्यूज ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस देन इट्स इन दिस सिनेरियो ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव एनी एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस प्रोविजन का लॉजिक क्या है कि भाई इट इंश्योर्स दैट द पुलिस और अदर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज दे डोंट यूज एक्सेसिव फोर्स टू एग्जैक्ट कन्फेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड। मार पीट के उससे कन्फेशन नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप कोई कन्फेशन ले रहे हैं किसी अक्यूज से, सो व्हेन ही इज टेकन बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट आस्क कि कोई जबरदस्ती तो आपके साथ नहीं हुई है, एंड ही सेज कि यस सर हुई है, देन इन दैट केस that confession will be of no value in the eyes of law। ठीक है, then article 21 right to life and liberty it provides that no one can be deprived of their life and liberty except as per the procedure which is established by law। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ और लिबर्टी 2 चीज इन्होंने बोली गई है। लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 जो है इट इंक्लूड्स द एंटायर गैमेट ऑफ लिबर्टीज except the liberties which are provided or except the liberties or freedoms which are provided under article 19। ठीक है ना। फिर मनिका गांधी का केस है, वो इसमें बहुत फेमस केस है, wherein it was held that article 14, 19 and 21 they are mutually interdependent and the concept of liberty as provided under article 21 should be given widest amplitude and widest ambit। ठीक है, देन आर्टिकल 21A फ्री एजुकेशन। देखिए पहले हमारे यहाँ पे जो 6 to 14 ईयर्स थे उन बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन था वो आर्टिकल 45 DPSP के अंदर आता था। नाउ 2002 onwards thanks to 86th amendment of the constitution it has been made a fundamental right, or the state has been instructed to provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 years। Okay, then there is
Article 22, which deals with protection against arrest and arbitrary arrest and detention. It guarantees 4 rights to every person who is arrested. 4 rights उनको प्रोवाइड कराता है. फर्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है. दूसरा है राइट टू कंसल्ट अ लीगल एडवाइजर ऑफ देयर ओन चॉइस. देन तीसरा है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. और चौथा राइट है नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट. ठीक है ना. देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. Article 23 and 24 constitute this group of right against exploitation, and Article 23 जो है it prohibits 2 things. First is human trafficking or other traffic in human beings, and second is begar or other forms of forced labor in of humans, and it declares both these things a punishable offense. ठीक है. 24 जो है it prohibits child labor. What it essentially provides for is that it prohibits employment of children who are lesser than the age of 14 years into any factory, industry or any other hazardous employment. ठीक है ना. Then next is the right to freedom of religion. Article 25 to 28 इसमें आते हैं. अब देखिए under Article 25 जो है all persons are equally entitled to freedom of conscience and are free to profess, practice and propagate any religion of their choice. 2 चीज दी है उन्हें, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन. ठीक है. देन आर्टिकल 26 जो है इस ये बोलता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, एवरी रिलीजियस ग्रुप, दे विल बी फ्री टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, एंड दे विल बी कंप्लीटली फ्री टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है. दे कैन acquire movable or immovable properties, and they can even administer their movable or immovable property whichever way they wish till the time it is in accordance with law. ठीक है. Then finally, then we have Article 27. It says that no one can be forced to pay any tax, or no tax can be levied which is supposed to be used for a promotion of any particular religious group, any particular religion or religious denomination. ठीक है. देन आर्टिकल 28 जो है, 28 क्या कहता है, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट एडेड है या फिर स्टेट फंडेड है, उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा. ठीक है. देन आर्टिकल 29 और 30 ये जो है दे डील विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. Now, under Article 29, all the minorities are provided the freedom to conserve 3 things: their culture, their script, and their language. ठीक है. Moreover, no one can be denied to an admission to an educational institution on the grounds of religion, race, caste, or language. ठीक है. ये 2 चीज इसमें बोली गई हैं. Then Article 30 जो है deals with minorities, rights of minorities to run educational institutions. उसमें क्या बोला है, all minorities, चाहे वो religious minorities हो, चाहे वो linguistic minorities हो, they have right to establish as well as administer educational institutions of their choice. ठीक है. उनके पास एक पूरी फ्रीडम है अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने की. मोरोवर इट सेज अनदर थिंग कि द स्टेट while granting aid it cannot discriminate. The state while granting aid it cannot discriminate against any educational institution only on the ground that it is run by a religious or linguistic minorities. ठीक है. Then we have perhaps the most pertinent and most prominent article of part 3. It is called as the heart or soul of part 3 by Dr. Ambedkar. Article 32 or the right to constitutional remedies, जो final 6th member of the group of 6 rights as we discussed before, जो है वो है right to constitutional remedies. ठीक है ना. Constitutional remedies होता क्या है, देखिए, they essentially refer to the remedies in the nature of direction, in the nature of orders, in the nature of writs which have been provided to the higher courts, that is the Supreme Court and the High Courts, by the Constitution for the protection and enforcement of fundamental rights. That is what constitutional remedies essentially mean.
ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड, ठीक है ना। आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है, ये जो गारंटी टू मूव सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 इटसेल्फ। सो the right to constitutional remedy is itself a fundamental right. Basically, the right to move to Supreme Court for protecting fundamental right itself has been made a fundamental right. ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो प्राइमरी पावर है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज इट्स पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। एंड दिस पावर टू इशू रिट्स, इट कम्स अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो दोनों है, दोनों के पास writ jurisdiction है. However, the writ jurisdiction of High Court is a tad bit larger than Supreme Court. हाई कोर्ट के केस में एक दो चीज एक्स्ट्रा ये हो जाती है कि द हाई कोर्ट गेट्स द पावर टू इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है. अब रिट्स जो है, रिट्स में बेसिकली 5 रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. सबसे पहले हो गई हेबियस कॉर्पस, which habeas corpus, it literally means to have the body of. Okay, it is a command by the court to any person or authority to who has detained another person and asking that authority or person to bring before the court the person detained. जब वो पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाएगा, द कोर्ट विल असेस द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन एंड अगर कोर्ट को लगता है द डिटेंशन वॉज इलीगल, इट विल सेट द पर्सन free. It is considered as the bulwark of liberty under the Indian Constitution. ठीक है. Then another writ is mandamus. Literally it means we command. ठीक है. So it is the command which is issued by the court to a public official asking them to either do or forbear from doing some activity which they were under a legal obligation to do or refrain from doing. ठीक है. or which they have failed or refused to perform. Then we have prohibition. Prohibition literally means to forbid. किसी चीज को forbid करना, that is what prohibition means, and it is issued by the Supreme Court to a lower court and it asks them to it is issued to prevent them from doing any action or to curtail any action which they performed in excess of their jurisdiction और बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन. अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड करके कोई एक्शन ले रहे हैं या फिर अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड कोई काम कर रहे हैं, तो उन एक्शंस को चेक करने के लिए द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज पास्ड बाय द एपेक्स कोर्ट्स एंड इट इज पास्ड टू प्रोहिबिट द लोअर जुडिशरी. ठीक है. देन देयर इज सर्टियोररी. इट लिटरली मीन्स टू बी सर्टिफाइड. बेसिकली ये है क्या कि it is a command that is issued to lower court to quash their orders. अगर वो ओवरफीजेंस कर रहे हैं, मालफीजेंस कर रहे हैं, मिसफीजेंस कर रहे हैं, तो उन सर्कमस्टांस में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजंस को सर्टिफिकेशन के नाम पर अपने पास बुला सकती है और उसको क्वाश कर सकती है. दैट इज व्हाट इन नटशेल सर्टियोररी मीन्स. ठीक है. देन देयर इज क्यू वारंटो. क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. आप किस अथॉरिटी से कोई पोस्ट पर बैठे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं. क्यू वारंटो जनरली जो रिट है, दिस इज इन नेचर ऑफ रिट विच इज इश्यू टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन. कोई व्यक्ति अगर बियॉन्ड द लीगल मैंडेट या फिर इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहा है या उसर्प कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए रिट ऑफ क्यू वारंटो इशू करी जाती है. ठीक है ना. अगेन दिस इज द रिट्स, दिस इज द चार्ट डीलिंग विद रिट्स. हमने यहाँ पे उसके लिटरल मीनिंग्स जो हैं वो लिख दिए हैं. हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ और टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ. मैंडेमस मीन्स वी कमांड. प्रोहिबिशन मीन्स higher court's prohibition to a lower court from asking it to stop, not act beyond its jurisdiction. Certiorari means certification by the higher court. Q warrant means by what authority. अब ये जो
टू वर्ड फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए, ये बहुत बार मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे बोथ हैव रिट जुरिस्डिक्शन, बट आर्टिकल 226 जो है उसके अंदर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो ब्रॉडर होता है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उससे आगे भी जा सकता है। देखिए हाँ, ये निमोनिक है रिट्स के रिस्पेक्ट में, ये आपको याद करना चाहिए, ये बहुत सिंपल वे में आपको याद दिला देता है और कनेक्ट भी कर देता है कि कौन सी रिट किस मैटर से डील करती है। सो दिस निमोनिक रीड्स हेल्प मी प्रिवेंट क्रेजी क्वैक्स, हेल्प मी प्रिवेंट क्रेजी क्वैक्स, और हेल्प से आप हेबियस कॉर्पस को कनेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस दैट यू हेल्प द पर्सन बिकम फ्री by giving it bail in case of wrongful detention. Me obviously connects with mandamus, M से सिर्फ एक mandamus ही होती है, और it can also be connected make me do my legal duty, you command that person to do their legal duty. Then there is prevent, which is connected to prohibition, it prevents the lower court from usurping jurisdiction or going beyond powers. Then there is crazy, crazy को आप certiorari से यूज कर सकते हैं. Basically what it is doing is it is cancelling a crazy decision by a lower court or lower authority. Then there is quack, which is connected with quo warranto, which is questioning a quack in the office. ठीक है ना, by what authority are you sitting in the office. There is another mnemonic which is देखिए अभी राइट्स को जब मैं उनके फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा था, we saw that some rights were available to all citizens and some rights were available to citizens as well as non-citizens. अब इसको अगर आपको याद रखना है तो what you can do is you can perhaps go for the mnemonic prime citizens. अब प्राइम सिटीजन्स जो है ये वो राइट्स को डील कर रहा है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, ये 20+30, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये आपके सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। जैसे पी से क्या हो गया आपका आर्टिकल 15, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा। देन आर से हो गया रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई से आपका हो गया इंडिविजुअल फ्रीडम्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, 6 इंडिविजुअल फ्रीडम्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19. देन देर इज एम, माइनॉरिटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हो गया 29 और 30 में. देन ई से मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स. प्राइम का ई जो होगा दैट इट मीन्स दैट द राइट्स अंडर प्राइम आर एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स ओनली और सिटीजन सेंट्रिक राइट्स, ठीक है. देन अनदर निमोनिक वी हैव इज द राइट्स विच आर अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन. इट कैन बी कॉल्ड जीप, JEEP फॉर ऑल, ठीक है ना. जैसे जे से हो गया जस्टिस, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ. देन देर इज ई, exploitation is banned under article 23 and 24. then there is emergency protections, article 20 और 21 जो है they cannot be suspended even during emergencies. and then finally P से personal liberty हो गया आपका article 21 and उसके साथ ही आपका 22 जो preventive detention से डील करता है, ठीक है ना. तो अब 14, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 26, 27, 28 ये आपकी जो 10 आर्टिकल्स हैं इसको आप याद कर सकते हैं जीप से, ठीक है. लेट्स चेक अ फ्यू PYQs ऑन फंडामेंटल राइट्स. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 15 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है. 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर फ्रीडम्स है. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है एंड आर्टिकल 29 कल्चरल राइट्स में आ गया. तो आर्टिकल 21 जो है दिस इज द राइट विच डील्स विद राइट टू प्राइवेसी. इनफैक्ट देयर इज अ केस लॉ, के पुट्टास्वामी वाला केस है, उसमें राइट टू प्राइवेसी हैज बीन declared an implied fundamental right under the umbrella of right to life under article 21. We have the answer here. Answer obviously is option C. Then we have, with reference to Indian constitution, consider the following statements. Constitution affirms the right of the individual to form associations. The constitution guarantees the right to strike as fundamental right. देखिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में 19 सब क्लॉज
1 के सब क्लॉज बी में आ जाता है, 19(1)(b) में आता है, तो यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. एंड द सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू स्ट्राइक, देन नो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी एनी राइट टू स्ट्राइक टू एनी सिटीजन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली. देखिए अब लैंडमार्क केसेस हैं, कुछ केसेस हो गए जैसे मनिका गांधी, पुट्टा स्वामी, ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ. एक दो केसेस और हैं जो आपको पता होने चाहिए. देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो अमेंडमेंट है ना, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, उसको लेके दो केसेस आपको क्लियरली याद होने चाहिए. एक तो गोलकनाथ जजमेंट और एक केशवानंद जजमेंट. इनिशियली अगर आप बोले 50s में, तो इनिशियली जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था वो ये था कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एवरी बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इट सो विशेस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. ओके, वहाँ पे कोई चेक लगाने के मूड में नहीं थी सुप्रीम कोर्ट. और उस टाइम का केस लॉ बहुत है, बट यू नो वी कैन नॉट रियली इंडल्ज इन टू ऑल दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे एग्जाम से पहले. तो ओके, जैसे ए के गोपालन है, एक केस मैं ले लेता हूँ, ए के गोपालन का केस है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, यू नो, इट वाज डीलिंग विद डीपीएसपीज, बट द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू, यू नो, अमेंड द फंडामेंटल राइट एज इट सो विशेस. एंड डीपीएसपी जो है उसकी रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी कि वाइल दे कैन नॉट बी गिवन अ प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है एंड टू सूट इट्स नीड्स. ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को इस तरह अमेंड कर सकती है कि वट एवर प्रोविजन द पार्लियामेंट वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन पार्ट 3 इट कैन बी ब्रॉट. ठीक है, देन कम्स गोलकनाथ जजमेंट, 1967 का गोलकनाथ जजमेंट है. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सेक्रोस्टेंट or they cannot be touched upon, and it clearly says that parliament has no power to pass any legislation or amendment which abridges the fundamental rights. अब इसके बाद आता है केशवानंद भारती. केशवानंद भारती में there is again a shift of stance and the Supreme Court says कि power of parliament to amend the constitution includes the power to amend every single provision of the constitution including the provisions of part 3. ठीक है, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक लगा दिया है व्हेन इट सेज दैट इट लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेड दैट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट बी टच्ड अपॉन, दे कैन नॉट बी अमेंडेड. ठीक है, देन देयर इज अनदर केस शायरा बानो. ये अभी रिसेंट केस है और इसने ट्रिपल तलाक जो था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. सो इट अगेन, यू नो, emphasizes on the fundamental right of life under Article 21, or it also emphasizes on equality before law under Article 14. इसलिए it is kind of relevant for us. Now there is suspension of fundamental rights. क्या fundamental rights suspend हो सकते हैं? हाँ, fundamental rights can be suspended. इसके रिस्पेक्ट में दो आर्टिकल्स हैं, 358 और 359. 358 सीधा सा कहता है कि whenever a national emergency on the ground of war or external aggression is imposed, then there is an automatic suspension of Article 19. State कोई भी ऐसी चीज कर रहा है which is prohibited under Article 19, it would nevertheless be allowed and there can be no action taken against state for violating the mandate of Article 19. But this permission to state stays in force only until the, you know, continuation of the proclamation of emergency. ठीक है, then as regards other fundamental rights, उनके रिस्पेक्ट में आर्टिकल 359 क्या कहता है कि एज फार एज अदर राइट्स आर कंसर्न, नाउ आर्टिकल 20 और 21 इन दो राइट्स को छोड़ के all other rights, all other fundamental rights, as far as their violation is concerned, in case this violation happens, then the president can pass a proclamation which suspends the right to move to Supreme Court under Article 32. ठीक है, और for that matter to High Court under Article 226. अब ये कह क्या रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके वायलेशन के रिस्पेक्ट में जब आप उसको चैलेंज करते हो वायलेशन को सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो वो आपका जो राइट है अंडर आर्टिकल 32, दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैट गेट्स सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359. ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, 20 एंड 21 जो है इनको किसी भी सर्कमस्टांस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे वो 358 हो, 359 हो, इंटरनल इमरजेंसी हो, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, कभी भी ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं. ठीक है ना. और एक चीज़ आप याद रखें कि
पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था प्रायर टू 44th अमेंडमेंट एक्ट, इट यूज टू हैव इंटरनल डिस्टर्बेंस as a ground for proclamation of emergency. Now that after 44th amendment it has been removed, and now article 352 reads that only on ground of war or external aggression can emergency be imposed. ठीक है, ओके. लास्ट मिनट टिप्स में व्हाट वी हैव इज, देखिए हर आर्टिकल जो आपको पढ़ाया है उसका जिस्ट मैंने दिया है, तो उसके जो की फ्रेजेस हैं दैट यू हैव टू कनेक्ट विद द आर्टिकल कंसर्न्ड. ठीक है ना, उसको उसके जो भी उसके साथ की यूजफुल फ्रेजेस हैं उससे आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो यू कीप रिटेनिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट आर्टिकल, और उसी के साथ आपको उसको याद रखना है. लैंडमार्क केसेस आपको 2-4 मैंने बताए हैं कि पुट्टास्वामी है, केशवानंद भारती है, या फिर गोलकनाथ केसेस है. ये 2-3 केसेस आपको एकदम दिमाग में रखने हैं. मनिका गांधी केस है, ये एकदम वाटरशेड इवेंट्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें, फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, और इनसे बहुत रेलिवेंट है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इनसे. ठीक है, डॉक्ट्रिन्स मैंने आपको बताई, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है. ये सारी जो डॉक्ट्रिन्स है इनको आपको ध्यान रखना है. इनफैक्ट देयर इज अनदर डॉक्ट्रिन विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, which says that can fundamental rights be waived. So under this doctrine of waiver, it is said that no, under no circumstance can a person waive his fundamental rights. देखिए ऑर्डिनरी जो हमारे राइट्स हैं, लाइक आप एक एग्जांपल दूंगा, तो कोई दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो द कोर्ट वेयर दे वुड गो एंड फाइल द सूट विल बी दिल्ली. तो यहाँ पे आपने करा क्या है, यहाँ पे आपने अपना राइट टू स्यू और राइट टू फाइल अ सूट इन एनी अदर सिटी एक्सेप्ट दिल्ली हैज़ बीन वेव्ड. ठीक है ना, यहाँ पे अपने लीगल राइट को आपने वेव कर लिया है. बट दिस फ्रीडम और दिस पावर इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वेदर यू वॉन्ट और यू डोंट वॉन्ट, यू कैन अंडर नो सर्कमस्टांस वेव योर फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल दीज डॉक्ट्रिन्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड. एंड जो फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस हैं, जैसे 15(1) और 2 के एक्सेप्शंस में बोल रहा था 3 to 6 में, 15(3) सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 3 से लेकर 15 सब क्लॉज 6 तक. सिमिलरली आर्टिकल 16 जो है उसके भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 16(4) से लेकर 16(6) तक. वो सारे एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको एकदम क्लियरली याद रखने हैं. ठीक है, एंड देन अ माइनर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, सिटीजन और पर्सन, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है. सिटीजन तो ऑब्वियसली मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी हो गए. पर्सन जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, इट इंक्लूड्स बोथ द सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन. इनफैक्ट एनी अदर एंटिटी विच मे नॉट इवन बी अ सिटीजन, ये सबको इंक्लूड करके रखता है, तो ब्रॉडर टर्म है. ठीक है, ये जितने भी आपको निमोनिक्स हैं और जितने भी इसकी स्लाइड्स के प्रोविजंस हैं, ये सारी स्लाइड्स आपको PDF फॉर्म में आई विल बी प्रोवाइडिंग इन my channel. You just need to subscribe to the channel and you can download these slides from there. और ये mnemonics I would request you sincerely कि इनको याद करके ज़रूर से यूज़ करिए, because they come in very very handy. Okay, so I welcome you to this lecture on Directive Principles of the State Policy, or DPSPs, covered under part 4 of the Constitution of India. DPSPs or Directive Principles, essentially what do they mean? They are in nature of directives or instructions or guidelines which are laid down in the Constitution and are to be followed by the state while making laws, as these principles are considered fundamental in the governance of our country. Though these principles are non-justiciable, but they are amongst the most tested topics in the prelims. So when you are covering this topic, you have to be very vigilant, very alert and very focused in your approach. देखिए फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे यू यूजुअली सी अ क्वेश्चन एवरी ईयर. सो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी चूक रहे हैं, यहाँ पे यू लूजिंग योर फोकस, दैट कैन कॉस्ट यू डियरली. एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर वेरी फोकस्ड, दैट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन you receiving some information which may literally be there in your exam on 25th of May. Okay, so what are DPSPs? As I told you before, they are guidelines for the government, or rather guidelines with respect to lawmaking, and they are fundamental in the governance of the country. Okay, अब इसमें एक दो चीज़ हमें याद रखनी है. पहला, एक तो इसका एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर.
First is Irish Constitution. In fact, Article 45 of the Irish Constitution, to be specific, उसके जो provisions हैं, they have quite significantly influenced our current set of DPSPs. Then there is a तेज बहादुर सप्रू कमेटी रिपोर्ट 1944 की कमेटी थी ये, उसके भी जो recommendations हैं, wherein this committee divided the rights. It was essentially made on rights, and it divided rights in two groups: rights which are justiciable and rights which are non-justiciable. तो ये जो non-justiciable rights थे सप्रू कमेटी रिपोर्ट के, they also influence our present day DPSPs. Fine. Then there is instrument of instructions which were given to the governors with respect to using their discretionary power in provinces, and these instructions were laid down under the aegis of Government of India Act 1935, and they also have influenced our present day DPSP setup. And finally, we have obviously the most famous objective resolution of Pandit Jawaharlal Nehru, laid down on 13th December 1946. उसमें जो आइडियल्स इंश्राइन किए गए हैं, जो आइडियल्स प्रोवाइड किए गए हैं उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उनमें से काफ़ी सारे आइडियल्स हमारे प्रेजेंट डे डीपीएसपी में हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. देन एज आई सेड बिफोर, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. बेसिकली अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, इन केस ऑफ डीपीएसपी इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई दे आर नॉन जस्टिसेबल. आर्टिकल 37 जो है, इट क्लियरली सेज दैट दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट्स. Okay. Then, as I've told before, that they are inspired by Irish Constitution, and they aim to establish a welfare state. They are primarily aimed at ensuring a social and economic justice for the people of India. I'm sorry. Oh, and one thing you must remember, they are not some legal mandate. They are essentially in nature of moral and political directives to the state. It is not legally bound, but it must follow these principles in its governance. Okay. Now we'll quickly look at the directives in a short form. See, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, उसको पूरा बैठ के एक एक word of the articles if we are going to do, it's going to take almost the entire night for us, and it is not a feasible proposition as well. So what we are going to do is we're going to stress on the most prominent phrases in every article जो आपको याद होना ही होना चाहिए. See, I'll be providing you this list as well as a few other things in this slides of mine at the end of this class, and it will be there in the form of a PDF, and you can subscribe to my channel and you can download that PDF from the channel. बट ये आपको समझना है कि जो की फ्रेजेज हैं, ये की फ्रेजेज आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए. इफ़ यू कैन रिमेंबर दीज की फ्रेजेज इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपीस. ठीक है. सो लेट्स सी. आर्टिकल 38 प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, एक चीज. और दूसरी चीज, हाउ डज इट प्रमोट दैट वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स? बाय इंश्योरिंग और सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है. एंड दैट अपार्ट इट सेज मिनिमाइजिंग और रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी, इन चार की इनइक्वालिटीज को ये मिनिमाइज करने पे स्ट्रेस करता है. And this reduction in inequalities has to be done between individuals inter se, as well as between various groups of people or other various sections of society. Okay. Then we have Article 39. It talks of multiple things. उसमें से चार की चीज़ें हैं. पहला, adequate means of livelihood for both men and women. दूसरा, we have distribution of resources of the community in such a manner that it subserves common good. ये सीधा Irish Constitution से उठाया हुआ है, so you should remember that. Then economic system should not result in concentration of wealth. And then finally we have Article 39D, equal pay for equal work. ये सीधा सीधा बहुत बार वर्बैटिम ही आ जाता है कि equal pay for equal work कहाँ दिया हुआ है. ठीक है. Then Article 39A instructs the state to ensure legal justice, we can say. It says that the legal system promotes justice and there is provisioning for free legal aid among the citizens in the court of law, and there is no discrimination which is faced by the citizens on basis of their economic hardships or their economic disabilities. Okay. Then we have Article 40, बहुत famous article है, organization of village panchayats and empowering them to function as units of self-government. Okay. Then we have Article 41. It talks about providing three things: right to work, right to education, and right to public assistance. तीन चीज provide कराता है, and it provides them to whom? To unemployed, old, sick, and disabled.
ओके, इन 4 लोगों को और एनीबडी हैविंग दैट वांट, सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ वांट, इन 5 कैटेगरी के लोगों को ये राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराने से डील करता है. देन वी हैव आर्टिकल 42. इट टॉक्स अबाउट ह्यूमेन जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस एट वर्क as well as provisions with respect to maternity relief. Okay. Then next we have article 43. It deals with first is provisioning for a living wage for the workers and at the same time promotion of cottage industries. ये दो provisions इसके एकदम phrases और provisions के आपको clearly याद रखने हैं. Living wage for the workers as well as promotion of cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज और कॉपरेटिव्स ये दो अलग अलग जगह हैं. बहुत बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ को, बट यू गॉट टू रिमेंबर 43 डील्स विद कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एज विल सी लेटर ऑन कॉपरेटिव सोसाइटी कम अंडर 43B. ठीक है. देन आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स. And 43B talks about promotion or voluntary development of cooperative societies. ये cooperative societies वाला article और cottage industry वाले article थोड़ा सा confusing है, so you'll have to remember it clearly. Okay. Then article 44, uniform civil code. अभी uniform civil code has quite been in vogue. We come across quite a lot of current affairs with respect to it. Uttarakhand a little while ago became the first state to establish a uniform civil code. So this article gets a relevance because of that, and more importantly पहले भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो you'll have to remember कि यूनिफॉर्म सिविल कोड comes under article 44. Okay. Then we have article 45. It talks about early childhood care and education for children up to the age of 6 years. ये वाला जो आर्टिकल है, it has been amended by 86th Amendment Act of 2002. पहले जो था, it used to deal with education and care of children up to the age of 6 to 14 years. Now the education under the Right to Education Act has been made a fundamental right under article 21A. और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी education needs जो है, they are looked after by fundamental right 21A. and children up to the age of 6 years उनकी educational needs के respect में article 45 deal करता है. Okay. Then article 46, it deals with promotion of educational interest and economic interest of SCs, STs and other weaker sections. क्या कह रहे हैं? SC, ST and other weaker sections जो हैं उसके educational और economic interest का protection करना, and दूसरा protecting them from all forms of social injustice as well as exploitation. ये दो aspects है जिसको article 46 deal करता है. Then article 47, raise the level of nutrition of the society as a whole and improve the standard of living of the people and reduce the consumption of intoxicating drinks like liquor and other intoxicating drugs, etc. ठीक है. Then we have article 48. It talks about organization of agriculture and animal husbandry. ये गांधीयन principle है और बहुत relevant है exam perspective के लिए. Organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and at the same time prohibiting the slaughter of cows, prohibiting the slaughter of cattle and other milk yielding animals. So ये गांधीयन प्रिंसिपल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, so you got to remember ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, ये दोनों एक साथ चलते हैं आर्टिकल 48 में. ओके. देन 48A, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन तीनों का प्रोटेक्शन किस में है? आर्टिकल 48A के अंदर है. देन वी हैव आर्टिकल 49 विच डील्स विद एन इंस्ट्रक्शन विच obliges the state to protect the monuments which are of national and historic importance or which have been declared to be monuments of historic importance by the archaeological survey. Okay. Then finally article 50, separation of executive and judiciary. बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है हम लोग के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज भी एक रेलिवेंट वर्ड है. ठीक है. देन आर्टिकल 51 फाइनली इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड आर्टिकल है ये, एंड इट रिक्वेस्ट द स्टेट टू इंश्योर फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी. The state is to ensure promotion of international security. Second is state is to ensure just and honorable relations with other nations. Third is state is to foster respect for international law as well as treaty obligations of our country. और चौथा है the state is to ensure settlement of international disputes by means of arbitration. ये settlement of international disputes by arbitration तो क्वेश्चन सीधा यूपीएससी में आ भी चुका है. सो अगेन चारों चीज़ आपको क्लियरली याद रखनी है. promoting international security, just and honorable relations with other nations,
promoting international peace as well as encouraging settlement of international disputes by arbitration. So 36 to 51 articles, this is the gist of those articles. You cannot afford to go and sit with your bare act and read each and every sentence or phrase given in these provisions. So just try to stick yourself to this crux of the matter. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीस, अभी जो हमने पढ़े हैं डीपीएसपीस, इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं: सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, गांधीयन डायरेक्टिव्स एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स. तो सोशल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, दे आर एमिंग एट इंश्योरिंग सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है ना, जैसे 38 है प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ पीपल, 39A हो गया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, and so on. Then we have Gandhian principles. Gandhian principles essentially reflect the ideas of Gandhiji, as the word obviously suggests. ठीक है, we have Article 40 organization of village panchayat, 43B cooperative societies. Then we have 43 promotion of cottage industries, 46 protecting the interests of SCs and STs and other weaker sections, and so on. Fine. Then we have liberal intellectual principles. अब liberal intellectual principles क्या हैं? ये बेसिकली जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट कर लिया है. ठीक है, जैसे वी हैव आर्टिकल 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये एक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल है जिसको हमने हमारे यहाँ पे डायरेक्टिव की फॉर्म में अडॉप्ट कर रखा है. या फिर ये आर्टिकल 51 डीलिंग विद इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एटसेट्रा. ये सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं सॉरी. ओके, सो दिस इज अगेन दैट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और उसमें एकदम वन वर्ड फॉर्म में आपको हमने दे दिया है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द क्रक्स ऑफ द मैटर. आपको इस क्रक्स ऑफ द मैटर को एकदम दिमाग में याद रखना है. परहैप्स इफ यू कैन मग दिस अप देन यू कैन ऐड दिस. Okay, so one article 36 you need to remember. जैसे हमारा आर्टिकल 12 है defines state, similarly article 36 also defines state, and it defines state to include union and state executive, union and state legislature, local authorities such as panchayats, municipalities, district boards, etc., and certain other authorities over which the government of the day has either a participation in it or a control over it. Okay, ये 4 चीजें हैं जो आर्टिकल 36 में आती हैं. सोशल ऑर्डर आर्टिकल 38, 40 पंचायती राज, 41 राइट टू वर्क, 40 फॉर्म यूनिवर्सल सिविल कोड. ये बस जो 2-3 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, दीज आर द क्रक्स ऑफ द मैटर. एसेंशियली दीज आर द वर्ड्स विच आई हैड हाईलाइटेड ऑल्सो इन माई प्रीवियस स्लाइड. तो आप उनको देख के भी पढ़ सकते हैं, इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं, विच एवर सूट्स योर पर्पज. ओके, कंपैरेटिव स्केल ऑफ डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों के अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो क्या है? पहला, डीपीएसपी जो है प्राइमरली नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड आर टोटली जस्टिसिएबल. इफ एट ऑल देयर इज अ वायलेशन ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, दे कैन क्विकली अप्रोच ईदर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट्स अंडर 226. ओके, सिमिलरली DPSPs are in nature of positive obligations. Basically they are guiding the state, they are guiding or they're instructing the state to act in a manner which works towards the welfare of the citizenry. Now fundamental rights on the other hand are primarily worded or drafted in a manner wherein they provide certain rights to the citizen and they as well as they act as restrictions on the power of the state. ठीक है, they are limiting the state actions, or in other words. Then DPSPs, the aim of the DPSPs is to focus on collective good, to promote social and economic justice, as well as to lay down the foundation of a welfare state where the needs and requirements of all the sections of the society are taken care of. अब जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स एसेंशियली दे फोकस अपॉन एस्टैब्लिशिंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. DPSP is socio-economic democracy or fundamental rights political democracy. They are focusing on individual liberty. They are ensuring that every individual citizen of the country is able to achieve the highest potential level of development. Okay. Then DPSPs are enforced via laws. DPSPs जो होते हैं ऑब्वियसली उनकी खुद का एक अपना इंडिविजुअल लीगल सैंक्शन कोई नहीं है. ठीक है, सो दे आर एसेंशियली इन नेचर ऑफ अ पॉजिटिव मोरालिटी दैट हैज बीन लेड डाउन फॉर रेफरेंस ऑफ द स्टेट, especially when it is making laws for the governance of the country. So since they don't have a legal backing, so if we have to enforce them, we have to add them to any legislation or we have to add a legislation to ensure their enforcement. On the other hand, fundamental rights primarily are automatically enforced.
जो बल्क ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड हैं इन द सेंस दैट दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर देयर एनफोर्समेंट, और as far as their violation is concerned, in that respect all the fundamental rights are enforced without any sort of legislative sanction. देखिए यहाँ पे दो एस्पेक्ट समझने, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अप्लाई करने के लिए या फिर एनफोर्स करने के लिए हमें लेजिस्लेशन की जरूरत होती है, जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है। अब उसको एनफोर्स आपको करना है तो आपको एक लीगल बैकिंग चाहिए, तो हमने एक राइट टू एजुकेशन एक्ट पास कर रखा है। आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी से डील करता है। अब अनटचेबिलिटी को क्योर करना है तो हमने उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 पास कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको एक लेजिस्लेटिव बैकिंग चाहिए, और बल्क फंडामेंटल राइट्स को कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं चाहिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21 ये सब अपने आप में सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बैकिंग। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द इवेंट ऑफ देयर वायलेशन, तब चाहे कोई भी फंडामेंटल राइट हो, दे आर यूनिवर्सली एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, key amendments related to DPSPs. So we have 42nd amendment 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इसमें तीन आर्टिकल्स, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और 48A, ये आपने ऐड कर रखे हैं। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड हो गया, फिर आपका 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हो गया। Then 44th Amendment Act 1978 during the Janata Party government has strengthened the Article 38, the article which dealt with the promotion of the welfare of the citizens and minimizing the inequalities. Okay. Then finally we have 86th Amendment 2002 which replaced Article 45. ये अभी आपको मैंने पीछे भी थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि पहले 6 to 14 ईयर्स तक की एज के बच्चों के लिए जो प्रोविजनिंग थी वो एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजनिंग हमारे आर्टिकल 45 में प्रोवाइडेड थी, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ आर्टिकल 21A थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 6 to 14 ईयर्स की रिस्पेक्ट में जितने भी एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस हैं दे आर बीइंग डेल्ट विद बाय आर्टिकल 21A। और हमारा जो आर्टिकल 45 है, इट प्राइमरी डील्स विद चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। ओके, लैंडमार्क केसेस, हाँ 2-3 केसेस हैं जो आपको याद रहने चाहिए। चंपकई दोराईराजन केस है 1950s का। अब आपको हल्का सा एक आइडिया रहना चाहिए 50s में जो सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच थी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द कोर्ट वाज ऑफ द व्यू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वी हैड जस्ट बिकम अ नेशन, सो यू हैव टू रीड इट इन दैट लाइन। ओके, सो बेसिकली इस केस में कोर्ट ने क्या रखा है कि the directive principles cannot have a supremacy over fundamental rights. That is one thing that the court has said. At the same time, what the court said is, since the power of the parliament to change any part of the constitution including the fundamental rights is unfettered, पार्लियामेंट को पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करने के लिए। सो अंडर दैट amending power of the parliament, or under that sovereign power of the parliament, it can amend the fundamental rights in such a manner that it can implement those directive principles. Okay, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीमेसी नहीं दी कोर्ट ने, पर ये कह दिया फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से अमेंड कर लीजिए कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुप्रीमेसी देके जो काम कराना था वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके करा लीजिए, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट केस इज गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस तक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड काफी चेंज हो चुका है। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज स्टेटिंग इज दैट द फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंट एंड दे आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उनको टच भी नहीं कर सकती है, and they form the cornerstone of our constitution. So the directive principles can never reach the same level as the fundamental rights, and no law which gives a supremacy to directive principles over fundamental rights can ever be declared valid. ये स्टैंड अप फाइनली फिर केशवानंद भारती से दोबारा चेंज हो जाता है। केशवानंद भारती आपको भी याद होगा वाटरशेड इवेंट है, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। 24 अप्रैल 1973 को पास आउट हुआ था ये। और व्हाट एसेंशियली इट सेड विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपीज इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ensures a harmony between directive principles as well as fundamental rights. While the constitution while the parliament has power to abridge any of the fundamental rights which are given into the constitution, but it cannot do so in a manner which affects the basic structure doctrine of the constitution,
At the same time, since the constitution ensures a harmony between part 4 and part 3, so the provisions which lay down or which improve upon this particular balance of the constitution will not be declared void. So for the first time in this landmark judgment, the court upheld the amendments by the parliament which gave a supremacy to article 32 39A and 39B of DPSPs. Okay, देन फाइनली वी हैव मिनर्वा मिल्स केस. अब बेसिकली यहाँ पे हल्का सा आपको इसका बैकग्राउंड जानना होगा. जो केशवानंद भारती केस था उसमें बोला गया 39A और B जो हैं दे कैन हैव अ सुप्रीमसी ऑफ फंडामेंटल सुप्रीमसी ओवर फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली ओवर आर्टिकल 14, 19 एंड 21. ओके, तो बाद में व्हाट पार्लियामेंट डज इज इट brings down another amendment of the constitution, where 42nd constitutional amendment, wherein it says that any law which has been passed so as to implement any directive principle of state policy will, if it, if in case it happens to have or violate any of the provisions of part 3, especially 14, 19, 21, then irrespective of violating the fundamental rights, it shall not be questioned, and nor shall such a law be, challenge against such a law be brought under any court of law. दो चीज इन्होंने बोली है. पहली चीज, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं अपने लॉ से, तो वो चैलेंजेबल नहीं होगा. दूसरी चीज हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा हम लॉ बना रहे हैं उस लॉ को आप कोर्ट में भी नहीं लेके जा सकते चैलेंज करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोला कि जहां पे भी आप द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, उसको किसी भी तरह से चैलेंज कर रहे हैं, दैट एक्शन ऑफ योर्स विल ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड वॉइड. So this provision which restricted from bringing any such law into the domain of judiciary was declared outright void. At the same time, it said in the Minerva Mills case that our constitution is built upon a balance between fundamental rights and DPSPs. So you cannot take a situation wherein you can give a complete supremacy to all the DPSPs over fundamental rights. You have to maintain a balance. So what the Minerva Mills did is, while it agreed with the Keshwanand judgment in respect to the fact that 39A और 39B जो हैं, those two can have a supremacy of over fundamental rights, but as regards all other DPSP, it said they will remain subservient and remain inferior to the fundamental rights of the constitution. Okay, now last minute tips. Okay, classification, हमने जो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत रेलिवेंट भी है और वो आपको याद भी रखना है, बिकॉज वहाँ से सीधा क्वेश्चन उठता है. यू कैन इधर मग दोज आर्टिकल्स अप और यू कैन मेक सम टेबल, अनदर टेबल आउट ऑफ इट, लाइक आई हैव मेड वन, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस टेबल इटसेल्फ. बट वो डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियरली याद रखना है, वो सीधा सीधा आ जाता है. ठीक है, और आपको याद रखना है सोशलिस्ट क्या था, गांधीयन क्या था, लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या था. ठीक है, देन देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स विच यू नीड टू फोकस अपॉन. भाई इन 17-18 आर्टिकल्स में से भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रेलिवेंस भी है और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी रहती है आपके एग्जाम्स में आने की. तो 38 है आपका, 39 है, 39A बहुत रेलिवेंट है, आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन इट हियर. आर्टिकल 40 डीलिंग विद पंचायत, वेरी रेलिवेंट. यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी करंट पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हुआ है. देन आर्टिकल 46 डीलिंग विद इंटरेस्ट ऑफ SC ST इन वीकर सेक्शंस, और फॉर दैट मैटर 48A, 51A, दिस इंटरनेशनल पीस एंड आर्बिट्रेशन. ये अपना जो प्रोविजन है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है. सो ये 5-6 आर्टिकल्स आपको, मतलब दे शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स. आपको कोई बोले तो आपको इमीडिएटली वो याद आ जाना चाहिए. दैट्स हाउ इट शुड बी. ओके, की अमेंडमेंट्स हो गए हमारे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका, या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है फॉर दैट मैटर. ये तीनों अमेंडमेंट आपको क्लियरली याद रहने चाहिए. ठीक है, देन एक चीज़ आपको याद रखनी है DPSP के बारे में कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वो आपको एकदम क्लियर डाल लेना अपने हेड में कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर. दे कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट. दे आर ऑन द सेम पेडिस्टल एज द फंडामेंटल ड्यूटीज व्हेन इट कम्स टू द लीगल सैंक्शन. Okay, let's take a few PYQs quickly. Which of the following are included in the directive principles of state policy? Uniform civil code, सीधा सीधा है आर्टिकल 44. Organization of village panchayat, आर्टिकल 40. Promotion of international peace and security, आर्टिकल 51. And separation of judiciary from executive in public services, आर्टिकल 50. चारों के चारों जो हैं हमारे DPSPs हैं. So option D obviously gets correct.
Okay, ये replacement of Article 45, which I have told you before. The original Article 45, what it read was, the state shall endeavor to provide free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. 0 से लेकर 14 साल तक की एज खत्म होने तक जो स्टेट है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा. बट अब आप देखिए आर्टिकल 45 में दे रखा है. तो व्हाट एसेंशियली डज इट मीन्स इज, द state is not duty bound to provide this education. He is under no compulsion. It is merely an obligation that it must follow in order to establish its conceptualization of welfare state. ठीक है ना. अब ये 6 से 14 ईयर्स की जो एजुकेशन है, इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो इवन इफ द स्टेट वांट्स और इट डजंट, इट हैज़ टू प्रोवाइड दैट एजुकेशन टू children between the age of 6 to 14 years. Up to the age of 6 years, it is still a directive principle. Okay. और ये जो आर्टिकल 86 ये जो 86 अमेंडमेंट था 2002 का, इसने 3 चीज़ करी हैं. एक, हमारा जो आर्टिकल 45 है इसको अमेंड करा है. एट द सेम टाइम इसने आर्टिकल 21A की फॉर्म में एक नया प्रोविजन ऐड करा है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच डील्स विद राइट टू एजुकेशन. देन फाइनली इट हैज़ एडेड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर जब करेंगे, देन यू विल कम टू सी दैट initially there were 10 fundamental duties, and the 86th amendment added the 11th one, which made it a fundamental duty for the parents of children who were of the age of 6 to 14 years to send their children, to ensure education for the children. Okay. Mnemonic to remember DPSPs. Mnemonic बहुत easy होते हैं, और मतलब often times they really work out to help you in understand or rather remember for longer time frame any particular phrase or any particular provision. तो देखिए, just equal lawyers provide healthy peaceful environment for justice and unity. Just equal lawyers provide healthy peaceful environment for justice and unity. Now J for Article 13, justice. E for equal pay and equal livelihood. L for equal justice and free legal aid का जो legal aid है उसके रिस्पेक्ट में डाल दिया. P for पंचायत अंडर आर्टिकल 40. H for just humane conditions of work अंडर आर्टिकल 42. P for public health and nutrition अंडर आर्टिकल 47. E for environment protection अंडर आर्टिकल 48A. और free F for free early childhood education. एंड देन J इज जुडिशियल जस्टिस. अगेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमने यहाँ डाल दिया सेपरेट आर्टिकल 50 की. एंड देन फाइनली वी हैव यूनिटी, और यूनिटी से हमको क्या पकड़ना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एज वेल एज इंटरनेशनल पीस 44 एंड 51. ओके. यू नीड टू रिमेंबर दैट इससे जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो उनकी फ्रेजेस में से आने हैं, एज वेल एज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल. सो बोथ ऑफ देम शुड बी इन योर हेड ऑल द टाइम. एट द सेम टाइम जो हमारे amendments of the constitution है with respect to directive principles, that must be kept in your head. And at the same time वो जो evolution के रिस्पेक्ट में हमने 2-3 बातें करी हैं, चाहे वो सप्रू कमेटी रिपोर्ट हो या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो इसकी हिस्टोरिकल लेगेसी है, दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट एटलीस्ट वो टर्म्स आपके दिमाग में क्लियरली रहनी चाहिए, सो दैट इफ एट ऑल दे पॉप अप द क्वेश्चन कि भाई जो सप्रू कमेटी रिपोर्ट है उसमें जो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स थे उनका क्या हुआ, या फिर अगर आप कोई और क्वेश्चन आपको आ रहा है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में पूछने की उसकी जो हमारी रेलिवेंस थी वो क्या थी. सिमिलरली आपको ये दे रहे क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, उसके बारे में पूछ ले रहे हैं कि उसकी हमारे लिए क्या रेलिवेंस थी. सो प्रीलिम्स में यू नीड टू बी क्लियरली रिमेंबरिंग दीज थिंग्स और दीज फैक्ट्स, सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्ट्रेट अप टिक हो. और DPSPs भी बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह हैं. इफ़ यू नो देम क्लियरली दे आर 100% स्कोरिंग क्वेश्चंस. वहाँ पे कुछ भी डाउट, मतलब आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होता है. तो ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन रिमेंबरिंग देम क्विकली. ओके. सो द टॉपिक वी विल टेक नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. छोटा सा टॉपिक है, एसेंशियली 11 ड्यूटीज़, 2 अमेंडमेंट और 2 प्राइमरी कमिटीज़ हैं जो आपको अपने दिमाग में एकदम क्लियरली याद रखनी है. और दैट्स अबाउट इट मोर और लेस. ठीक है ना. कूल. सो बिगिन विद ड्यूटीज़. फंडा क्या, ड्यूटीज़ होती क्या है? सिंपली स्टेटेड, ड्यूटी मीन्स एनी moral or civil obligation, or for that matter any obligation that a person have towards others. अगर हम ड्यूटी के रिस्पेक्ट में बात करें, जिसे हम हिंदी में जिम्मेदारी कहते हैं, तो what exactly it means is that obligation of one person towards another. Okay. अब ये मॉरल भी हो सकती है, ये लीगल भी हो सकती है, फिर सिविक भी हो सकती है. जैसे
टैक्स है, टैक्स पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिविक ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, और फॉर दैट मैटर एवरी सिटीजन. Respecting others or taking care of our elderlies, this is a moral duty. We are morally bound to do this. There is no other compulsion to it. ठीक है. अब अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हुई? गोइंग बाय दिस वेरी corollary, fundamental duties are those moral or civic obligations which have been, brought within the parameters or contours of our very constitution, and these are these expectations of the constitution of the republic from its citizen. Okay, fair. It is essentially aimed at ensuring that we, as active, informed, and responsible members of the Indian society, are assumed to voluntarily attend to these duties in our daily lives. These duties have been laid down in Part 4A of Constitution and Article 51A. एक ही आर्टिकल है 51A जो पार्ट 4A में दिया गया है, उसमें ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं. ठीक है. अब इसका ओरिजिन और बैकग्राउंड हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. सबसे पहले तो कट टू 42nd अमेंडमेंट 1976. मैं आपको शुरू में ही बोला 2 अमेंडमेंट से काम किए हमारे. तो पहला तो ये कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी the Indira Gandhi government of that time decided to appoint a committee to deliberate and suggest upon the fundamental duties that could be included in the Constitution of India, because it felt during the emergency a need to have such a kind of a document and such a duties inside the Constitution itself. So the committee was formed, and based on its recommendation, Part 4A was adopted. Now this Swan Singh committee, it recommended adoption of 8 fundamental duties, but we went ahead and adopted 10 instead. In fact, उसकी एक दो ड्यूटीज हमने, एक दो रिकमेंडेशन हमने फॉलो भी नहीं करी. जैसे they were wanting to add duty to pay tax as a fundamental duty, या फिर they were even interested in penalizing for non-observance of fundamental duties, but the government nevertheless decided to stay away from it. ठीक है. And these duties have been inspired from the constitution of erstwhile USSR. ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको पढ़ाया जाता है, एंड इवन हियर ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर इट कि हमारी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये erstwhile USSR का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे काफ़ी हेवीली इंस्पायर्ड है. एंड एज आई सेड बिफोर, दे वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. द पर्पज एंड फिलॉसफी बिहाइंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो टॉकिंग अबाउट दिस पर्पस एंड फिलॉसफी, देखिए है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे एम्फेसाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स alongside the fundamental rights. See, we as citizens enjoy certain fundamental rights, but while enjoying these rights, we need to be conscious about the fact that we have certain duties also towards our country, towards our society, towards our fellow citizens, etc. So these fundamental duties aim to remind us about that. Okay. Then they promote unity, integrity, and national spirit in a country that is diverse as India. There are various sections in various strata of population living in the Indian Democratic Republic, और सबके बहुत अलग अलग सोशो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं. अब उनके बीच में एक आप यूनाइजन फॉर्मुलेट करना चाह रहे हो. यू वांट टू ब्रिंग अ feeling of brotherhood or fraternity amongst them. So for that purpose, these duties come into picture. They remind us that we owe certain duties to our fellow citizens, and we need to implement these duties in our daily life to promote a unity in the nation itself, despite our diverse social as well as cultural backgrounds. Okay. Then they serve as a moral code. They guide the conduct of citizens of India, and they expect us to behave in a particular manner in our daily course, in daily lives. So that is one another feature or other purpose of these duties. Then eventually they provide a framework which encourages discipline as well as commitment to the nation. What are the key features of these fundamental duties? See, 2-3 चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है. पहला, they are non-justiciable. See, although as a citizen, we are expected to follow them, but if we do not get to follow them, हम उन्हें follow नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा that we can be prosecuted for that, or we can be put behind bars for the non-observance. ठीक है ना? So the state cannot take us to courts for their non-observance. That is one. Then secondly, they are applicable only to citizens.
देखिए अब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, नाउ फंडामेंटल राइट्स कंटेन सर्टेन प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू सिटीजन्स, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, 21 है, दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। बट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर टोटली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली। Non citizens, if they can apply them, good. If they don't apply them, does not matter. Okay. Then thirdly, they are in nature of moral and civic obligations. तो इसका मतलब क्या है कि भाई देर इज नो लीगल सैंक्शन पर से फॉर देयर नॉन ऑब्जर्वेंस। इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, अगर ये ड्यूटीज फॉलो करी जाती हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट इफ दे आर नॉट फॉलोड देन द स्टेट कैन नॉट टेक अस टू कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। इट्स एनफोर्समेंट कैन नॉट बी द स्टेट कैन नॉट पुश फॉर देयर एनफोर्समेंट। बट उसी से इसका नेक्स्ट पॉइंट भी निकलता है फीचर्स का कि ऑल्दो दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ऑल्दो दे आर इन नेचर ऑफ मॉरल और सिविक ऑब्लिगेशन, बट दैट डज नॉट मीन द स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स देम थ्रू लेजिस्लेशन. If the state so wishes that it wants to enforce any particular fundamental duty through a legislation, it can always make a law, or it can always pass a law, and through that it can legislate on that fundamental duty and can totally make a law which asks for their enforcement. Okay, list of fundamental duties. Okay, so what we have done here is we have given the key phrases in the major in all the 11 fundamental duties that are here. See, as I told you before, when the constitution was formed, there were 10 fundamental duties, and here we have a list of 11 fundamental duties. The final fundamental duties which deals with providing education to children between the age of 6 and 14 years, this was added by the 86th amendment of the constitution. ठीक है, ये आपको याद रखना है अलग से कि पहला तो था 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई थी, इंक्लूड करी गई थी, और दूसरा है 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली है. ठीक है, आई क्विकली रीड दीज फ्रेजेस, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है. अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी रिस्पेक्ट द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी चेरिश द फ्रीडम स्ट्रगल, we uphold the sovereignty and integrity of India, we defend the country, we render national service when we are called upon to do so, we promote harmony, fraternity and brotherhood amongst various sections of the society, we preserve, protect and preserve our rich heritage, our composite culture, then we develop scientific temper, humanism, spirit of inquiry among the citizens of India. Similarly, we safeguard public property, we abjure violence, then we strive for excellence in all spheres of human endeavor. Then last one, we are providing education to children under the age of 6 to 14 years. अब देखिए ये लिस्ट है, आप ऑब्वियसली अपनी जो भी आप बुक रेफर कर रहे होंगे उसमें आपको एक प्रॉपरली पूरी लंबी लिस्ट दी हुई होगी, और थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यू विल हैव टू मग दिस थिंग अप, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आता है. एंड ऑफ लेट वी डू कम अक्रॉस ट्रेंड्स वेयर इन दे वुड जस्ट ले डाउन द particular fundamental duty and they would ask you कि which article it is. Article 51A तो है ही, उसका सब आर्टिकल कौन सा है, whether it is 51A 51A A B C, इस तरह से कौन सा आर्टिकल है. ठीक है, then okay, we've made this memory aid which might help you in learning all these 11 fundamental duties. So it reads as courageous patriots unite for harmony, culture, environment, inquiry, property, excellence and education. अब ये है क्या, एक निमोनिक फॉर्म में हमने बनाने की कोशिश करी है. सो यू कैन जस्ट मग दिस पर्टिकुलर फ्रेज अप, एंड आपको जो बाकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इसके इंडिविजुअल वर्ड से कनेक्ट करनी है. जैसे करेजेस का सी है, उससे हमने पिक कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, या फिर हारमनी का एच है, उससे हमने हारमनी और ब्रदरहुड आपने पिक कर लिया है. हारमनी फिर अगेन इट्स कमिंग एज अ फंडामेंटल ड्यूटी इटसेल्फ. या फिर एनवायरनमेंट के लिए ई है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो गया, वो सारा का सारा आपने वर्ड से पिक कर लिया कनेक्ट करके. सो all these will be available on this slide. I would be putting up in my channel and you can perhaps just subscribe to the channel and वहाँ पे आपको available हो जाएगा in case you want to download it. Okay, then fundamental rights versus fundamental duties, इनका अगर हम comparative analysis करें तो देखिए एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, fundamental rights जो होते हैं they are available against the actions of the state. जो स्टेट है उसके आर्बिट्ररी एक्शंस जो होते हैं उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द अदर हैंड आर द ऑब्लिगेशंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स.
स्टेट के लिए वो फॉलो नहीं करना है। ये रूल्स जो हैं, ये एस्पिरेशंस जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, ये इंडिविजुअल सिटीजन्स के रिस्पेक्ट में दी गई हैं, ठीक है। देन राइट्स आर एनफोर्सेबल, ड्यूटीज़ आर नॉट। फंडामेंटल राइट्स जैसे आपको पता हो तो जस्टिसेबल होते हैं। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट कोई स्टेट एक्शन एब्रिज कर देता है, एब्रोगेट कर देता है, टेक अवे कर लेता है, तो देन यू हैव अ राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 एंड एनफोर्स दोस फंडामेंटल राइट्स। आप जाके बोल सकते हैं मेरा इस फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है एंड आई वांट अ रेमेडी। They will be providing you constitutional remedy. Then duties are not justiciable. अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सही है, बट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लीगल सैंक्शन एज ऑफ नाउ, सो इन केस यू डू नॉट फॉलो देम, द स्टेट कैन नॉट टेक यू टू द कोर्ट्स। ओके, देन राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, while duties on the other hand they promote collective responsibility. Self explanatory sentence है. Then rights are mostly negative, that is they act in form of a restriction on the action of the states. Most fundamental rights जो हैं वो negatively drafted हैं, that क्या कहते हैं, there should be prohibition on अनटचेबिलिटी, देर इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, वो नेगेटिवली ड्राफ्टेड हैं। जबकि ड्यूटीज हैं दे आर पॉजिटिवली ड्राफ्टेड ऑल्सो एंड फिलोसॉफिकली दे आर इन नेचर ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सिटीजन बाय द पॉलिटी और द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको हम वी एज सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड इट टू फॉलो देम बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so let's quickly look at the PYQs. First is fundamental duties of Indian citizens were provided by amendment to the constitution, judgment of the Supreme Court, order issued by the president or a legislation adopted by the parliament. मैंने टॉपिक शुरू करते टाइम ही आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इनको हमने अडॉप्ट और इनकॉर्पोरेट करा था, तो द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो करेक्ट आंसर इज ए. Then the 86th amendment to the Constitution of India inserted which one of the following as the fundamental duty. तो अभी जब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा था वो stating it that we have to remember two constitutional amendments, one is 42nd, another is 86th. So the options given are respect the national flag, protect the natural environment, safeguard public property and provide opportunities for education to children aged 6 to 14. The option D is the correct answer. Then next is which of the following is or are among the fundamental duties of citizens. इनमें से कौन कौन सी ऐसी हैं जो हमारी fundamental duties हैं? To preserve the rich heritage or of our composite culture, to protect the weaker sections from social injustice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. अब इन तीनों में से कौन सी हैं? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Maybe for a second you can try to think. अगर आपको वो 11 की लिस्ट एक बार को दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, you could just try to think. और as far as the answer is concerned, we can clearly see those option 2 है to protect the weaker sections from social injustice. ये किसी भी ड्यूटी में नहीं दिया हुआ है. Let me go back to the list and show it to you again. Okay, C. Abide by constitution, respect institution, cherish freedom struggle, uphold sovereignty and integrity, defend country, promote harmony and brotherhood, preserve rich heritage of composite culture, ठीक है ना, develop scientific temper and humanism. Injustice के बारे में हमने यहाँ पे कहीं the question that's what the question says is social injustice, protect the weaker section from social injustice. ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है. Essentially this is in nature of a fundamental right anyways, this is more in nature of a restriction that can be made on the action of state. Citizens are not supposed to take these kind of actions. तो आप इसको अगर आपको fundamental duties याद हैं तो उस हिसाब से भी handle कर सकते हैं. Otherwise by simple logic भी आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं. So the correct answer here would be 1 and 3, which is option C. Correct answer is C, right? Okay, in terms of last minute tips as far as prelims 2025 is concerned, हमको 2-4 चीज़ें याद रखनी है. पहला, ड्यूटीज़ कितनी है? 11 ड्यूटीज़ हैं. बनी किस कमेटी पे थी? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी पे. कौन से अमेंडमेंट से बनी थी? 42nd अमेंडमेंट से. 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई थी? 86 अमेंडमेंट 2002 से. देन इनकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं जो हमको इस लिस्ट में दिए हुए हैं, वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स आपको याद रखने हैं कि बहुत बार उन वर्डिंग्स को ही जंबल अप करके भी यूपीएससी दे सकता है. एंड दे कैन ट्राई टू चेक कि आपको वर्ड्स एग्जैक्टली याद हैं कि नहीं है. सी, ये बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है. अगर आपको वो लिस्ट याद है और ये जो 5-10 बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये आपको याद है, दैट इज टोटली ऑल अबाउट इट. इतने में से ही एसेंशियली क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं आ रहा है. ठीक है ना. देन
वी कैन लिंक ड्यूटीज विद आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसमें एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट किया गया है एज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, तो उससे हम फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन आर सेल्फ वी कैन ट्राई टू फ्रेम MCQs, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जब हम बैठ के उसके बारे में पॉन्डर कर रहे हैं, देन वी कैन गो हेड एंड थिंक कि अच्छा कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, और उन फ्रेजेस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट वी कैन ट्राई टू पॉन्डर अपॉन। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए, 51A जो है, रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा फ्लैग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह के नेशनल एंथम है, इन सब के लिए जो रिस्पेक्ट करते हैं हम, 51A की फंडामेंटल ड्यूटी रिफ्लेक्ट्स दैट। देन सिमिलरली प्रमोटिंग यूनिटी अक्रॉस रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस, इट गेट्स विजिबल इन 51A पार्ट E। Similarly, or participating in Swachh Bharat and environmental efforts, reflected in 51AG for that matter. Educating children at home, जो हम लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, एडुकेशन टू चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 6 to 14, वो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखिए, ड्यूटीज़ और उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जब भी आप फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ेंगे, उसको इलेबोरेटली उस लाइन को आप डिफाइन करेंगे अपने दिमाग में, वो चीज़ आपको क्लियरली याद रहनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको लिस्ट दे दी, जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे, 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए, एंड देन दे गेट टू आस्क यू विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल दे दिया, 51A क्या है, 51A क्या है, 51AG क्या है, और साथ में आपको 3 अलग से कॉलम में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी और बोल दिया इनको पेयर करके दिखाइए आप। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देम इन एडवांस। आप वो लिस्ट याद रख रहे हैं या फिर ये हमारे निमोनिक्स याद रख रहे हैं, ईदर वे यू आर गोनो सेल थ्रू देम विद ईज, बट आपको याद पक्का से रखना है, देर इज नो गोइंग अराउंड इट, गोइंग अबाउट इट। ओके, देन ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू ऑल रेजिडेंट्स। देखिए अभी क्वेश्चन को घुमा दिया है, व्हेन वी वर डूइंग द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, वहां पे क्या था, वी टॉक दैट ड्यूटीज आर ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स। अब यहाँ लिखा है रेजिडेंट, अ रेजिडेंट कैन इंक्लूड अ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, सो दिस इज ऑब्वियसली अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर लीगली एनफोर्सेबल, नो एज ऑफ नाउ दे आर नॉट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट टू एनवायरनमेंट है, उस पे आपने कोई उससे रिलेटेड कोई फंडामेंटल ड्यूटी दे दी, और उससे रिलेटेड आपका कोई एक्शन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इज इट परफॉर्मिंग, डज इट अमाउंट टू परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ऑल इन ऑल आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना है, छोटा सा टॉपिक है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, दे कैन आस्क फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर all the diverse perspectives from which the question can come up. Okay, I think that's about it for this topic.